چلتا رہے. بے شک انسان دنیا میں آ گیا، کامیابی کا کوئی تصور نہیں، کامرانی کا کوئی تصور نہیں، سرفرازی کا کوئی تصور نہیں. انسان اپنی زندگی یوں ہی گزار رہا تھا. کسی نے کہا اے انسان زندگی ایسے گزار کہ کامیابی کا صحرا تیرے سر پہ سجا دیا جائے، کامرانی کا صحرا تیرے سر پہ سجا دیا جائے، بلندی کا صحرا تیرے سر پہ باندھ دیا جائے. انسان ایسے زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ زندگی اس حال میں گزار کہ تو سردار بن جائے. انسان چلا کامیابی کی تلاش میں، انسان چلا کامرانی کی تلاش میں. حضرات، انسان نے سوچا کہ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کامران ہونا ہے، اگر سرفرازی کا صحرا سر پہ باندھنا ہے تو مجھے کسی کے قانون کو اپنانا ہوگا، مجھے کسی کے طریقے کو اپنانا ہوگا، مجھے کسی کے بتائے راستے پہ چلنا ہوگا. امریکہ کے قانون نے آواز دی اے انسان میرے قانون کو اپنا لے، اے انسان میرے طریقے کو اپنا لے. انسان امریکہ کے قانون کی طرف چلا، غور سے دیکھا تو امریکہ کا قانون جھوٹا نکل گیا. انسان نے کہا اے امریکہ تیرے قانون میں وہ طاقت نہیں جو مجھے صراط مستقیم پہ پہنچا دے، تیرے قانون میں وہ طاقت نہیں جو مجھے راہ مستقیم پہ پہنچا دے، جو مجھے فائز المرام کر دے. پتا چلا امریکہ کا قانون جھوٹا نکل گیا. چین کے قانون نے آواز دی اے انسان میرے قانون کو اپنا لے، میرے طریقے پہ چل. انسان چین کے قانون کی طرف چلا، پتا چلا چین کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا. حضرات، اب جاپان کے قانون نے آواز دی انسان میرے قانون کو اپنا لے. انسان جاپان کے قانون کی طرف بڑھا، پتا چلا جاپان کا قانون بھی جھوٹا نکل گیا. اب انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، کامیابی کا کوئی تصور نہیں، سرفرازی کا کوئی تصور نہیں، کامرانی کا کوئی تصور نہیں. انسان کی زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے کہ اب میں کس طریقے کو اپناؤں، کس راستے کو اپناؤں، کس کے بتائے طریقے پہ چلوں کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے. تو کسی نے انسان سے کہا اے انسان پریشان مت ہو، آجا قرآن کی بارگاہ میں آجا. ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے. اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے. ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے کہا اے قرآن تیری عظمت کا جواب نہیں، تیری شان کا جواب نہیں، تیری بلندی کا جواب نہیں، تیری رفعت کا جواب نہیں، تیرے مقام ثریا کا جواب نہیں. اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے. آج انسان زندگی گزار رہا ہے، اسے کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کامران ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ سرفراز ہو جائے. بتا قرآن کس کے طریقے پہ چلے، بتا قرآن کس کے راستے پہ چلے. تو قرآن جواب دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. رسول کے بتائے راستے پہ چلو گے زندگی کامیاب ہو جائے گی، رسول کے بتائے طریقے پہ چلو گے تمہاری زندگی کامران ہو جائے گی. نبی کے بتائے راستے پہ چلو گے تو دنیا میں بھی آرام سے رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام سے رہو گے، اور میدان محشر میں بھی آرام سے رہو گے. کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قرآن پیغام دیتا ہے اے لوگوں اگر تمہیں زندگی گزارنا نہیں آتا رسول کا زندگی گزارنا دیکھ لو، تمہیں زندگی جینے کا طریقہ آ جائے گا، تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا. ہم نے کہا اے قرآن کیا صرف نبی کو دیکھنے سے طریقہ مل جائے گا، کہ صرف نبی کا دیدار کرنے سے طریقہ مل جائے گا؟ تو قرآن جواب
देता है। हाँ हाँ, अगर तुम्हें चलना नहीं आता तो रसूल का चलना देख लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हें खाना नहीं आता, नबी का खाना देख लो, तुम खाने का सलीका सीख जाओगे। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो नबी का अंदाज़े गुफ्तगू देख लो, तुम्हें बोलना आ जाएगा। अगर तुम्हें पानी पीना नहीं आता तो मेरे रसूल का पानी पे नोश फरमाना देख लो, तुम्हें पानी पीने का सलीका आ जाएगा। रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर तुम्हें बेटियों से प्यार करना नहीं आता, नबी का अपनी बेटी फातिमा से प्यार करना देख लो, तुम्हें बेटियों से प्यार करना आ जाएगा। अगर तुम्हें बहनों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का अपनी रज़ाई बहन हजरत सीमा से मोहब्बत करना देख लो, तुम्हें बहनों से प्यार करना आ जाएगा। अगर तुम्हें माँ से मोहब्बत करना नहीं आता तो तुम मेरे नबी का रज़ाई माँ हलीमा सादिया से मोहब्बत करना देख लो, तुम्हें माँ से मोहब्बत करने का सलीका आ जाएगा। दस्तार बंदी के प्रोग्राम में आने वालों, इस जश्न पाक में आने वालों, आओ जरा कुछ नसीहत की बातें लेके जाओ। कुरान कहता है रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हम नबी के तरीके पे चलेंगे, नबी के बताए रास्ते पे चलेंगे, तभी हमारी जिंदगी कामयाब हो सकती है। आज मेरी तकरीर का उन्वान मैं आज आपको बता दूं, मैं सिर्फ 3 हस्तियों पे तकरीर करूंगा। बेटी क्या है इस पे तकरीर करूंगा, बहन क्या है इस पे तकरीर करूंगा, माँ क्या है इस पे तकरीर करूंगा। इसी में कुछ नसीहत की बातें आएंगी। आप देखें, अगर अमल करेंगे तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। देखो मदीने वाले मुस्तफा का पैगाम क्या है। आज कॉलेज की पढ़ी हुई मेरी बहन, आज इंग्लिश मॉडर्न में पढ़ी हुई मेरी बहन, आज जब कॉलेज में जाती है तो कभी हिजाब पे पाबंदी लगती है, कभी उसके बुर्के पे पाबंदी लगती है। आज ये और कुछ मेरी बहनें कौम की अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन में ढली हुई, वो आज अपना इंटरव्यू दे के कहती है कि पैगंबर इस्लाम ने औरतों के हक में इंसाफ नहीं किया है। कुछ सालों पहले जालिमा औरत तस्लीमा नसरीन ने भी कहा था कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम के औरतों के साथ में इंसाफ नहीं किया है। आज भी कुछ मॉडर्न तरीके की लड़कियां हैं जो आज ये जुमला बोल देती है कि पैगंबर इस्लाम ने औरतों के हक में इंसाफ नहीं किया। मर्दों को घूमने का हुक्म दे दिया, औरतों को 4 दीवारी के अंदर कैद रहने का हुक्म दे दिया, औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दे दिया, औरतों को बुर्के में रहने का हुक्म दे दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी माँ बहनें भी इस प्रोग्राम में आई हुई है, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक लोहा होता है और एक सोना होता है। आप लोहार की दुकान पे जाएं, जब आप सरिया सीमेंट की दुकान पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा सरिया को बाहर डाल दिया जाता है, उसे अंदर नहीं बल्कि बाहर छोड़ दिया जाता है और दुकानदार दुकान बंद करके घर चला आता है और सरिया दुकान के बाहर पड़ी रहती है। और एक सोना है, सोना जिसे तुम बाहर नहीं रखते हो बल्कि अंदर तिजोरी में छुपा करके रखते हो, अंदर तिजोरी में उसको छिपा करके किसी की नजर न पड़ जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों दुनिया की चीजें हैं, सोना भी दुनियावी चीज है, लोहा भी दुनियावी चीज है, लेकिन लोहे को बाहर क्यों डाल दिया जाता है, सोने को अंदर छुपा के क्यों रखा जाता है? तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा, मौलाना सोना कीमती है, कीमती। मैंने कहा अभी कुछ समझ में नहीं आया, ये इस्लाम की माँ और बहनें जो है ये एक कीमती चीज है, इसलिए पैगंबर इस्लाम ने इन्हें खुलेआम घूमने का हुक्म नहीं दिया बल्कि पर्दे का हुक्म दिया है, ताकि तुम पर्दे में रहो, तुम्हारे ऊपर किसी जालिम की नजर न पड़ने पाए, तुम्हारे ऊपर किसी गंदे की नजर न पड़ने पाए। जब तुम पर्दे में रहोगी, इस्लाम के रास्ते पे चलोगी तो तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहेगी, तुम्हारी आबरू भी महफूज। पीछे से हाथ उड़ा तो इसलिए जो कीमती चीज होती है उसे छुपा के रखा जाता है।
जो कीमती चीज होती है उसे पर्दे में रखा जाता है। आपने देखा होगा कभी आप दुकान से केला खरीदे, फल की दुकान से, और केला खरीदने के बाद में उस केले को ऐसे ही रख दें, कोई मक्खी उस पे नहीं बैठेगी, और जैसे ही आप उससे छिलका छुटा देंगे, छिलके को छुड़ा देंगे और फिर उसके बाद केले को रखेंगे, उसके ऊपर मक्खियां बैठना शुरू हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? क्या समझे, ये केले का जो पर्दा है वो उसका छिलका है। जब तक वो पर्दे में रहा केला, उसके ऊपर कोई मक्खी नहीं बैठी, उसके ऊपर कोई भी गंदी चीज नहीं बैठी। जैसे ही पर्दा हटा केले का, उसके ऊपर गंदगी बैठना शुरू हो गई, मक्खियां बैठना शुरू हो गई। ऐ मेरी बहनों, आप भी नहीं समझी, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने तुम्हें पर्दे का हुक्म इसीलिए दिया है कि जब तुम पर्दे में निकलती हो तो किसी परिंदे की नजर तुम पे नहीं पड़ती है, और जब ये पर्दा निकलती हो तो परिंदों की नजर तुम पे पड़ जाती है। अगर परिंदों से बचना है, हबश के पुजारियों से बचना है, तो मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जिंदाबाद, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो पैगाम दे दो उन मॉडर्न लड़कियों को जो कहती हैं पैगंबर इस्लाम ने औरतों के हक में इंसाफ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं मेरी बहन, अगर मेरे आका तेरे साथ इंसाफ नहीं करते तो आज तेरा वजूद दुनिया में नहीं होता, बेटियों का वजूद नहीं होता इस दुनिया में। और ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी इस्लाम की बेटी, ऐ मेरी इस्लाम की माँ, सुनो, जब तुम पर्दे में रहती हो, जब तुम बुर्के में रहती हो, तो तुमसे मदीने वाले मुस्तफा राजी होते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुमसे मदीने वाले मुस्तफा राजी होते हैं, हजरत फातिमा राजी होती है। अरे जब तुम पर्दे के साथ निकलती हो तो नबी तुमसे राजी होते हैं, जब तुम पर्दे के साथ निकलती हो तो तुमसे हजरत फातिमा राजी होती है, जब तुम पर्दे में रहती हो तो इमाम हसन राजी होते हैं, इमाम हुसैन राजी होते हैं, और जब पर्दे बेपर्दा निकलती हो तो अमेरिका वाले खुश होते हैं, जापान वाले खुश होते हैं, जर्मन वाले खुश होते हैं, जर्मन वाले खुश होते हैं। इसलिए ऐ मेरी बहन, अब तुझे इख्तियार है, चाहे तो अमेरिका वालों को राजी कर ले, चाहे तो अफ्रीका वालों को राजी कर ले, चाहे तो जर्मन और जापान वालों को राजी कर ले, या पर्दे में रह करके हजरत फातिमा को राजी कर ले, या पर्दे में रह करके हजरत ज़ैनब को राजी कर ले। जब तू पर्दे में रहेगी तो हजरत फातिमा तुझसे राजी हो जाएगी, हजरत ज़ैनब तुझसे राजी हो जाएगी, और हजरत फातिमा राजी हो गई, हजरत ज़ैनब तुझसे राजी हो गई, तो दुनिया की बहारें तेरे लिए है, उकबा के नजारे तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो पैगाम दे दो उन्हें जो कहती हैं कि नबी ने इंसाफ नहीं किया औरतों के हक में। देखो मेरे नबी ने कैसा इंसाफ किया। सुनो उर्रा बाजार के जिंदा दिल मुसलमानों, कैसा इंसाफ किया मदीने वाले मुस्तफा ने। मेरे नबी की आमद से पहले ये वही मक्का है, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सबकी दुआएं लेते हुए मेरे नबी की आमद से पहले ये वही मक्का है जहाँ किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। उसके बारे में लोग चौराहों पे जिक्र करते थे, कहते थे कि देखो फला के घर में बेटी ने जन्म लिया है, फला बहुत बड़ा मनहूस है। वो इस आर की वजह से, इस शर्मिंदगी की वजह से अपनी उस छोटी सी बेटी को उठा करके जमीन में जिंदा गाड़ आता था। हजरात ये हाल था नबी की आमद से पहले, बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। मेरे नबी की आमद से पहले भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबह कर देता था, अपनी बहन का खुद मर्डर भाई कर देता था, ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। और माँ का हाल ये
था प्यारे मुसलमानों, अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसको बाजार में ले जा करके बेच दिया जाता था। माँ को बेटा बेच करके आ जाता था बाजार में, चाहता तो बेटा खुद अपनी माँ को अपने पास रख लेता या उसे बाजार में ले जा करके बेच देता। हजरात ये हाल था नबी की आमद से पहले। बेटियों की कोई इज्जत नहीं, बहनों की कोई इज्जत नहीं, माओ की कोई इज्जत नहीं। देखो मदीने वाले मुस्तफा ने कैसा पैगाम दिया अपनी उम्मत को, कैसा दर्श दिया अपनी उम्मत को। मदीने वाले मुस्तफा ने बेटियों से जहां लोग प्यार नहीं करते थे, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में उठा करके इरशाद फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, लोगों बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं, ये दर्श मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं, ये सबक मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं। आओ नबी के एक सहाबी का मैं वाकया सुना दूं, जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी मिलता है। नबी की नजर जब दहिया कल्बी के चेहरे पर पड़ी, बड़े हसीन और जमील सहाबी थे। नबी ने दुआ की, मेरे परवरदिगार दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। दहिया कल्बी के ताल्लुक से पैगंबर इस्लाम की दुआ कबूल हो गई। क्यों ना दुआ कबूल होती? मेरा इमाम फरमाता है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, नबी के लम्हाए मुबारक से दुआ का निकलना था, उधर बाबे इजाबत से टकरा गई दुआ, उधर दुआ कबूल हो गई। हजरत दहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद में आ गए नबी की बारगाह में। नबी ने अपनी चादर को बिछा दिया, दहिया इस पे बैठ जाओ। दहिया कल्बी रोने लगे। नबी की चादर उठा के सीने से लगा ली। या रसूल अल्लाह, मैं इस लायक कहा कि आपकी मुकद्दस चादर पे बैठ जाऊं। नबी ने फरमाया, कलमा शरीफ पढ़ लो। कलमा शरीफ पढ़ा दहिया कल्बी ने। अब दहिया कल्बी रोने लगे। नबी फरमाते, रो क्यों रहे हो? कहते, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरी गलती माफ कर देगा? क्या अल्लाह मेरी खताएं माफ कर देगा? आका, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। नबी ने फरमाया, तुमने गुनाह क्या किए हैं? कहते, आका, मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंदर जो घर आते थे वो 70 घर आते थे। मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। क्या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर देगा? आका रोने लगे। अपना चेहरा अनवर फेर लिया दहिया कल्बी से। आप सामने आ गए, बाईं जानिब चेहरा फेरा, दहिया कल्बी बाईं जानिब आ गई। या रसूल अल्लाह, अब आप चेहरा फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? या रसूल अल्लाह, आप अपना चेहरा मोड़ लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हज़रात, मेरे आका ने दाहिनी जानिब चेहरा मोड़ लिया। दहिया कल्बी दाहिनी जानिब आके कहते, या रसूल अल्लाह, सजा बता दीजिए आका, मेरे इस गुनाह की सजा क्या है? दहिया कल्बी रो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, आका, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है। दहिया कल्बी से कह दो, जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ताला ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया था।